Good. Mahajana yena gata sapantha. Welcome on behalf of IS by IS, that is Prisa IS. Or there are enormous opportunity to make your career beyond IAS. है कि नहीं? There is a lot of opportunity prevails in society which can be harnessed by you just by making commitment from yourself, not from expectation from maa baap or anybody else. Yesterday I was watching a video. The 13 years old guys erected $1 million of company. He is from Bombay, Gujarati guy. I mean to say that there is enormous opportunity in your life. You can crack, you can win, you can ensure your place by making hard work. Hard work and hard work. There is no any alternative of hard work. कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है. But that parishram, that hard work should be in direction of objective oriented. The path should be defined, the path should be decided by you or by your any guide or mentor, that by which path you will have to proceed to reach Delhi. है ना? अब आप घूमते घामते आइएगा गोरखपुर से गोंडा, गोंडा से फिर लखनऊ, लखनऊ से फिर चले जाइएगा उल्टा इलाहाबाद, फिर आइए. तो दैट पाथ इज नॉट रिकमेंडेड, बट यू कैन क्रेक, यू कैन एक्सप्लोर योर वर्ल्ड by your hard work. There is no alternative of hard work. So please remember, hard work in the right direction. Direction is also as important as your hard work. Otherwise hard work will not pay any fruitful result. Clear है? तो हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में कैसे होगा? जैसे हमने बताया, क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों पैदा किया, कैंपा फंड सरकार ने क्यों बनाया. तो रीजन बिहाइंड दैट कि भाई इन्वेस्टमेंट में फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में देयर वाज द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. दैट्स वाई कैंपा फंड वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, mentioning that you should deposit the money equivalent to the damage, or you will have to plant number of tree whatever you have going to cut down. तो ये रीजन था. अब ये थोड़ा ना पूछ रहा है कि हाँ कैंपा फंड क्या है, क्या लाया गया. सरकार और यूपीएससी इज वेरी वेरी स्मार्ट. दे ऑलवेज ट्राई टू मेक यू बुद्धू, बट whosoever is intelligent, he or she will not become बुद्धू. They will be more smarter than यूपीएससी. तो ये तो आपके और यूपीएससी के बीच टसल है. तो डाल तो हम पात है ना. तो आपको गेम खिला रहा है, खेलो, आओ हमारे साथ गेम खेलो. तो दैट इज द गेम ऑफ चेस. प्ले गेम थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में विल बी स्टडी कि दूसरे की चाल को समझ के चाल चलना. शतरंज में ही होता है ना. तो सच टाइप ऑफ अप्रोच और मेथडोलॉजी you will have to create, you will have to build in your personality, so that at the any stage of moment, at any moment of time, you will be in position to defeat the others, defeat the enemies. दुश्मन हो गया ना. तो good. After this inspiring lecture, we will have to proceed the next question, GS to polity, that is pre and mains combined. And question number 153. How collegium system in India has been in news about appointment of judges in higher courts. Give your suggestion to get rid of shortcomings of this system. So many times we have discussed collegium system, है ना. कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसका वैलिडिटी है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो वही है इसमें. ये कल हो भी चुका है मुझे लग रहा है. हाँ, question number 154, we come directly to there. And question is, what do you mean by local government? How it emerges as a pillar of democratic valued organization in India? अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज, स्थानीय
स्थानीय सरकार जिसको लोग कहते हैं, दैट इज पंचायती राज। सिंपल है, व्हाट डू मीन बाय पंचायती राज, व्हाट डू मीन बाय लोकल गवर्नमेंट, व्हाट डू मीन बाय द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। इसको ऐसे भी बोल सकता है, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए एक वर्ड ए भी यूज कर देगा, व्हाट डू यू मीन। तो व्हाट डू यू मीन बाय लोकल गवर्नमेंट या ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का बेसिक बुनियादी आधार, ये भी कह सकता है, द बेसिस ऑफ या बेसिस या बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एट व्हाट लेवल। तो लॉट ऑफ synonyms, lot of पर्यायवाची can be used by the question setter just to twist your understanding, just to make you confused, है ना। So we will have not to become confused, because we will become more smarter than UPSC question setter, है ना, कि वो कहीं से भी कुछ भी शब्द यूज करे, you will try to catch that word। तो इतने सारे शब्द जो है सिनोनिम्स के रूप में यूज हो सकते हैं। बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक लेवल ऑफ गवर्नेंस, ये भी कह सकते हैं, है ना। कुछ भी कहें आप समझ जाइएगा कि कहना क्या चाह रहा है, भाव वही है उसका। ग्रास रूट लेवल, बेसिक लेवल, दिस लेवल, दैट लेवल, हाउ इट इमर्ज एज ए पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू मीन्स जो हम लोग, आप लोग प्रियम्बल में यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप ढूंढिए तो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू लिखा है क्या क्या। अब देखिए क्वेश्चन कैसे टेढ़ा कर दिया हमने, कि हाउ फार डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा टफ लगने लगा, थोड़ा लगने लगा टफ, ज़्यादा नहीं। सीधा सीधा पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल ऑफ इंडिया एंड व्हाट डज इट मीन, तो आप आराम से लिख देंगे। और जब वो पूछेगा कि हाउ मच डेमोक्रेटिक वैल्यूड या विच डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इंश्राइंड आर इनकॉर्पोरेटिंग इन द प्रियम्बल, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना पूरे में कि कौन कौन डेमोक्रेटिक वैल्यू है या नहीं है, वो बाद में इसके बाद बताते हैं। वैसा आप गेस कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट, तो ये हो गया लोकल गवर्नमेंट का सिनोनिम्स, कि हाउ मच इट इज एसोसिएटेड विद द अदर टर्मिनोलॉजी, इफ एनी अदर टर्मिनोलॉजी इज बीइंग यूज्ड देन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। और सेकंड इज पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यू विल हैव टू फोकस ओनली ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू, नॉट द साइकोलॉजिकल वैल्यू, नॉट द एनी अदर वैल्यूज, है ना। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू हम बताते हैं क्या होता है। तो लोकल गवर्नमेंट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट द लोकल लेवल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव who are accountable to the people of that area. In India, local government is also known as Panchayat Raj and is a constitutional provision for grassroots level. देखिए ये सब चीजें हैं जो हम बोल रहे थे, देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनाने में हमें जो है इस चीज पे ध्यान दिया गया है कि भाई इसके साथ और एसोसिएटेड जो है क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आई एम ऑलवेज रिपीटिंग दैट कि हाउ वुड यू एलिजिबल टू फोकस ऑन द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। क्योंकि सारा दुनिया में जड़ जो है ना समझने का है, समझ लो। डॉक्टर भी जब तक आपकी बीमारी ना समझ ले तब तक वो इलाज नहीं कर पाता। नहीं तो समझ लीजिए कि ही ऑलवेज गेट्स एरर्स एंड ट्रायल्स। कभी कुछ दवाई दे देता है, समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स चेंज द मेडिसिन एंड जस्ट सेकेंड ऑप्शन, आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन। तो दैट सिचुएशन शुड नॉट बी अराइज इन योर स्टडी लाइक दैट। तो आपको जो है चीज़ों को ठीक से समझना जरूरी है, एरर एंड ट्रायल में नहीं जाना है, भूल और प्रयत्न। बार बार साहब गलती करते हैं फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं फिर सीखते हैं। So that philosophy is not up to the mark for your success, because इस टाइप की थ्योरी से always makes error and makes rectification, again repeat error and again rectification. So such type of habit, such type of modus cannot make your future bright, है ना।
क्योंकि वो तो पूरी जिंदगी कहते हैं ना, होल लाइफ विल बी लेस periodicity to get it corrected and get it rectified by your own mistakes. तो होशियार लोग क्या कहते हैं करते हैं, वो जो है दूसरे की गलती से सीख लेते हैं और फिर वो अपना रास्ता सही चुन लेते हैं। तो यही चीज़ इसमें बता रहा हूँ कि जो चीज़ इसमें हमने प्रोड्यूस किया है उसको आप ठीक से समझिए। पंचायती राज यही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस, देख रहे हैं ना, ये सब आपको तंग करेगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा कि ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस मीन्स, डज इट मीन दैट द लोकल गवर्नमेंट, हाउ फार इट इज इक्विवेलेंट टू द लोकल गवर्नमेंट, ऐसे घुमा देगा। पूछेगा कि हाउ फार पंचायती राज इज डीम्ड टू बी लोकल या ग्रास रूट या बेसिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी टीनेट्स, ठीक है ना। तो कुछ भी बोले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को समझ लेंगे। इन दैट सिचुएशन यू विल बी बिकम मास्टर, नॉट टॉट्स, शिष्य नहीं मास्टर हो जाएंगे। वो एक कल वीडियो देख रहा था, बिहार का वो लड़का कौन, बॉबी राज है, तीसरी क्लास में 10वीं को मैथ पढ़ा रहा था। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं भाई हमारे यहाँ, गजब यार, रियली सैल्यूट। तो पंचायती राज सिस्टम आप कहाँ से चला था, ये 1959, ये सब आपको मालूम ही है। सेल्फ गवर्नेंस प्री में आता है, ऑल दिस ब्लॉक लेवल 3 टियर सिस्टम, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, सेकंड इज ब्लॉक लेवल, थर्ड इज जिला परिषद लेवल। द सिस्टम वाज फर्दर स्ट्रेंथन इन 92 विद द 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच है पंचायती राज। ये सब चीज़ आपको मालूम है। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है आपको पहले से भी मालूम है, हमने सिर्फ इसमें इतना ही स्पाइस ऐड किया कि इन एनी वे द कंफ्यूजन कैन बी arise in your mind by alternative of terminology, but you should not get confused। बाकी तो आप सब जानते हैं। ये local government has emerged as a pillar of democratic value in India because it promotes grassroots level democracy। मतलब जो गरीब सबसे लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो benefited by the पंचायती राज।